اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ تسبیح، یہ جو تسبیح ہم کرتے ہیں، تسبیح کرنا کیا ہے؟ یہ ہم بڑی بڑی تسبیحاں لاتے ہیں سعودی عرب سے، تبرکن لوگوں کو آگے تقسیم کرتے ہیں۔ تو تسبیح کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی اس کے معنی کیا ہے، لغت کے اعتبار سے اس کے کیا معنی ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں کیا وہ ان معنی پر پورا اترتا ہے ہمارا عمل؟ جب خلافت ختم ہوئی، ملوکیت آئی، جب دین بدل گیا، وہ مذہب کی شکل اختیار کر گیا، نام دین ہی رہا، تو اس میں یہ کام بھی ہوا، تسبیح کے معنی بھی بدل گئے، وہ بدل کے کچھ اور ہو گئے جو اب ہیں ہمارے پاس۔ یہ قرآن کے معنی نہیں، قرآن سے معنی نہیں بنتے یہ عمل، اس پر میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے اس کا مادہ کیا ہے۔ عربی کا جو قانون ہے، اصول ہے، اس کا کوئی مادہ ہوتا ہے، وہ مادہ سے جو لفظ بھی آگے بنتے ہیں وہ معنی ان میں جتنے بھی لفظ آگے بنیں گے وہ معنی ان الفاظ میں پائے جائیں گے۔ یہ بات بہت ہی سمجھنے والی ہے۔ مادہ ایک ہے، تسبیح ہے، مادہ ہے سین بے ہے۔ اس مادے سے آگے جتنے بھی الفاظ بنیں گے ان کے معنی ایک جیسے یا وہ معنی ان میں ضرور ہوں گے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے قرآنی الفاظ کے مادے، پروفیسر مولانا محمد رفیق صاحب یہ لکھتے ہیں، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی نہایت جامع اور فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اس کا وسیع ذخیرہ الفاظ ہے، اس میں نئے الفاظ بنانے کا باقاعدہ نظام موجود ہے۔ اس کے ہر اسم اور فعل کا عام طور پر ایک مادہ روٹ ہوتا ہے جس میں اس کے بنیادی معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے بنیادی معنی معلوم ہوں تو اس سے بننے والے تمام اسماء، افعال اور مشتقات کا مطلب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بھی بنے، کوئی مشکل بات نہیں جو سمجھنے نہ آئے۔ مثال کے طور پر لفظ کتابن کو لیجیے، اس کا مادہ روٹ یہ ہے کاف تے بے۔ اس مادے کی بنیادی معنی لکھنے کے ہیں اور اس سے بننے والے الفاظ جیسے کاتبن لکھنے والا، کتابتن لکھنا، مکتوبن لکھا گیا یعنی خط وغیرہ ہیں، اور ان سب میں لکھنے کا مفہوم کسی نہ کسی طرح شامل ہو گیا ہے۔ یہ بنیادی بات جو سمجھنے والی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب لغت، یہ میرے پاس جو لغت ہے سے آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ پرویز صاحب کی ہے لغات القرآن۔ اس سے میں آپ کے سامنے یہ سین بے ہے کا جو مادہ ہے، اس سے جو الفاظ آگے بنتے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کے پاس جو لغت ہے آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں، اس کی کیا ہے۔ ایک بات ہے کہ یہی جو میں پروفیسر صاحب کی بات کی ہے، اس نے آگے کچھ نہیں، مادہ ضرور بتایا ہے کہ تسبیح کا مادہ یہ بنتا ہے، آگے کوئی نہیں ڈیٹیل، تسبیح کو تسبیح رہنے دیا، اس سے کوئی مفہوم واضح نہیں ہوتا، جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی کرتے رہیں۔ بہرحال یہ آپ نے غور سے بات سنی، اس کے جو الفاظ بنتے ہیں، جو معنی، ان کے معنی ان میں کس کس طرح پائے جاتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں اس میں وہ معنی کیسے فٹ ہوتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہیں۔ سب ان کے معنی ہیں تیرنا، سب وافی نہر وافی نہر سب ہن و سب تن کے معنی ہیں نہر میں تیرا، اسباہ فی المائے اسے پانی میں تیرا دیا، اسے پانی نے ترا دیا یا اسے پانی میں ترا دیا، کچھ لکھنے میں کچھ ایسی بات ہے۔ اسا بے ہاتھ تو کشتیوں کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے جائیں، بنیادی معنی تیرنا جو ہے وہ آ رہا ہے، آگے بھی آتے جائیں گے۔ اسواہ بے ہو وہ گھوڑے جو دوڑتے وقت
तैरने वाले की तरह अपने हाथ पांव आगे बढ़ाते हैं। अस्सबाहो अच्छे पैराक को कहते हैं, तैरने वाले को, नाम ही उसका है अस्सबाहुन। नीज इससे मुशाबत की बिना पर तेज रफ्तार घोड़े और ऊंट को भी कहते हैं। तेजी के मानी जो इसमें पाए जाते हैं, लिहाजा ये घोड़े को भी कहते हैं। लिहाजा सब हुन के मानी हुए किसी काम की तकमील के लिए पूरी पूरी तगोताज करना। आप देखते जाएं, सब हुन के मानी ये वही तेजी जो पाई जाती है, पूरी पूरी तगोताज करना, किसी काम की तकमील के लिए, मुकम्मल करने के लिए अमकान बर जिद्दोजहद करना, हर वक्त सरगर्म अमल रहना। यह है जी तस्बीह। ताज में इब्ने शमील का ख्वाब मज़कूर है, उसमें भी यही बात पाई जाती है। बहरहाल तेज रफ्तारी। सुबहान अल्लाह के मानी हैं अल्लाह की तरफ तेज रफ्तारी से जाना और उसकी इताअत में मुस्तद रहना। ये सुबहान अल्लाह की जो हम तस्बीह करते हैं, मानी देख रहे, अंदाजा कर लें आप, हम क्या करते हैं, चीज असल में वो है क्या। सुबहान अल्लाह के मानी है अल्लाह की तरफ तेज रफ्तारी से जाना और उसकी अताअत में मुस्तद रहना। दरअसल अताअत में मुस्तद रहना ही उसकी तरफ जाना है, वरना उसका तो कोई मकाम नहीं है कि उसकी तरफ जाए। वो कहता है मैं तुम्हारी शारग से भी करीब हूँ, किधर जाए। उसकी अताअत में तेजी करना ही उसकी तरफ जाना मकसूद है। फाफिरू इल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ। किस तरफ भागें जी? उसकी अताअत की तरफ भागना है, उसके अहकामात को पूरा करने के लिए भागना है। बहरहाल रागब ने भी कहा है कि सब हुन असल में पानी या हवा में तेजी से गुजरना है। फिर इस तारातन फलक में तारों के तेज खरामी के लिए बोला गया है। तस्बीह अल्लाह की इताअत में तेजी करने को कहते हैं। अजाबाद इसका इस्तेमाल वसत इख्तियार कर गया और इसे कौली या अमली या इत्कादी अबादात के लिए बोलने लग गए, ताकि अब सब हाथों उन दानों को कहते हैं जो तस्बीह में परो लिए जाते हैं, कहते हैं उन दानों को। हालांकि ये चीज अरबों में गैर मरूफ है, अरबों में ये मरूफ नहीं है दानों पर अल्लाह का नाम पुकारना करना। तस्बीह ईसाई राहबों के यहाँ होती थी, जिन्होंने उसे गालबन बुद्ध मत वालों से लिया था। आप देख लें ये हमारे यहाँ तस्बीह कहाँ से आई और कैसे आई, मानी क्या बनते हैं, मादा से आपने देखते जाना है। कुरान करीम में अजराम समावी के मतलब है कुल्लुन फी फालक यस्बहूना। ये 36 नंबर सूरत या गालबन ये यासीन सूरत है, 40 नंबर। वो तमाम अपने अपने दायर आर्बिट्स, जो ये सितारे चक्कर लगाते हैं अपने अपने दायरे आर्बिट में तेजी के साथ तैर रहे हैं। आप देखें ये तस्बीह कर रहे हैं, कुल्लो फी फलक यस्बहून, सब फलक में तैर रहे हैं, यस्बहून तस्बीह कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब अरशाद है इन्ना लाका फिन्ना हारे सबहन तवीलन। ये मुजम्मल की 7 नंबर आयत है। तेरे लिए दिन में बड़ा लंबा प्रोग्राम होता है, तुझे बड़ी जिद्दोजहद करनी होती है। ये इसका मतलब है सबहन जिद्दोजहद करनी होती है। आगे इससे भी अहम बात है, तेरे लिए दिन में परिंदों के मतलब कहा, जहां से मेरे जहन में ये बात आई कि मैं ये बात बयान करूं। कुल्लुन कद आलिमा सलाताहु व तस्बीहाहु, ये सूरत नूर की 41 नंबर आयत का हिस्सा है कि जो फजा में परिंदे उनको आप वो अल्लाह तस्बीह बयान करते हैं। ये इसका मतलब हर एक को इल्म है अपनी सलात का और अपनी तस्बीह का। इन आप देखिए ये सलात और तस्बीह, सलात पर भी बात होगी बाद में,
तस्बीह का मतलब मैं फिलहाल बयान अर्ज कर रहा हूँ। तस्बीहातुन, बेशक वो परिंदों की तस्बीह हो, हमारी इंसानों की तस्बीह हो, हमसे पहले पैगंबरों की तस्बीह हो, उनके पैरोकारों की तस्बीह हो, वो मानी लाजमन जो मादा में पाए जाते हैं, इसके सीन बे हे के इतबार से जो मानी पाए जाते हैं वो सब में मुश्तरक होने चाहिए। ये असूल और कानून है अरबी का। मादा का जो जैसे अरबी में रूट कहते हैं, वो लफ्ज किस मादा से निकला है। अब इधर देख लें, हमारा तस्वर ये है कि शायद ये कि कोई अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, जिस तरह हम तस्बीह करते हैं उसी तरह ये परिंदे भी कर रहे हैं, दरख्त भी कर रहे हैं, हर चीज कर रही है। कुल्लुन कद आलिमा सलाताहु व तस्बीहाहु, उनमें से हर एक फजा की पहनाइयों में अपने अपने रास्ते से भी वाकिफ है। ये है जी इसका, उसके मादे के तस्बीह के एतबार से इसका मफहूम या तर्जमा जो आप समझ लें। हालांकि वहां कोई निशान राह नहीं लगा होता, या कह लें या अपने अपने मकासद के पीछे जाने से वाकिफ है। इनमें से हर एक अपने अपने मकासद के पीछे जाने से ये वाकिफ है, ये है इल्म उसके पास, और अपनी अपनी जिद्दोजहद के दवायर और हसूल माश के तौर तरीके से भी क्या है, वाकिफ है, इल्म है उसे। हम देख लें क्या मतलब लेते हैं। ये है ये परिंदों को कुल्लुन कद आलिमा सलाताहु व तस्बीहाहु, जो तस्बीह का मादा है सीन बे हे के आगे मानी जो बनते हैं, ये मतलब उसका बनता है, ये मफहूम बनता है। हमारी तस्बीह क्या है? सब्बाहा लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्द, 57 नंबर आयत की पहली आयत के मानी है कायनात की पस्तियों और बुलंदियों में जो कुछ है वो सब इस प्रोग्राम की तकमील में जो कानून खुदाबंदी की रूह से उनके लिए मुतय्यन किया गया है। दरअसल इसकी जिम्मेदारी का मतलब भी बनता है, कानून खुदाबंदी के मुताबिक उनके लिए जो भी मुतय्यन किया गया है कायनात में, पूरी शिद्दत और तेजी से मसरूफ़ अमल है, उसको पूरा करने में, उस मकसद की तकमील के लिए हर वक्त सरगर्म अमल रहते हैं। ये है जी सब्बाहा लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्द, हर वक्त सरगर्म अमल रहते हैं। खारजी कायनात की चीजें इस प्रोग्राम की तकमील के लिए आज खुद सरगर्म अमल रहती हैं। इंसान के अलावा तमाम चीजें जो उनकी जिम्मेदारी उनको मुतय्यन की हुई है रोजे अव्वल से मशीयत एज़दी जब के तहत वो उनको की हुई है, वो उसमें सरगर्म अमल है, वो पूरी कर रही हैं, ऑटोमेटिक कर रही। इसमें मोटी सी बात बता दूं कि जो हर चीज की खसूसियात है, हर चीज की तासीरात है, वो उनमें लगी हुई, अल्लाह ने जो भी हुक्म उनको दिया हुआ है वो हो रही हैं ऑटोमेटिकली। फसब्य बेस में रब्बिकल अजीम, ये 56 नंबर की गालबन 96 नंबर, ये 66 नंबर आयत है। आपने नशोनुमा देने वाले की सिफत रबूबियत उज़्मा को, जिस पर सारी कायनात की इमारत इस्तवार है, इंसानी माशरा में अमलन मुतशक्ल करने के लिए सरगर्म अमल रहना, ये है जी फसब्य बेस में रब्बिकल अजीम। इसके रास्ते में जो कुव्वतें मज़ाहम हों उनके खिलाफ जिद्दोजहद को भी जिक्र और तस्बीह कहा गया है। अब ये साथ थोड़ा सा जिक्र का लफ्ज भी आ गया, चूंकि ये मानी ही सारे बदल गए हैं तो उनका तर्जमा भी हम वैसा ही करते हैं कि जैसे मैं ये आयत आपको बताता हूँ क्या मानी हुए, इंसानी माशरा में अमलन मुतशक्ल करने के लिए सरगर्म अमल रहना, और सरगर्म रहने के रास्ते में जो कुव्वतें मज़ाहम हों उनके खिलाफ जिद्दोजहद को भी
जिक्र और तस्बीह कहा गया है। ये मैं आपको बताता हूं, अगर निकल आया, ये 20 नंबर सूरत गालिबन ताहा और इसकी आयत है 21 और 20। क्योंकि तर्जमे जब बदले हैं तो बहुत कुछ साथ सारा कुछ बदल गया। 34 नंबर 34 नंबर इसकी आयत है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। आपकी मर्जी, आप इसको इस तरह समझें या जिस तरह समझें। बनता तो यही है कि जो इसका मादा बनता है उसके हिसाब से हम इसको समझें। कै नौसब्बिहा का कसीरन, ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेज रहा है उसके मुकाबला करने के लिए। वो आगे, ताकि वो क्या कहते हैं, हम बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें। आगे लाम है, आयत आगे चलती है। नौसब्बिहा का कसीर रम व नज़कुरा का कसीरा, और बकसरत तेरी याद करें, जिक्र करें। वही जिक्र और तस्बीह की बात आ गई। 33 और 34 नंबर आयात ताहा की तर्जमा, अगर रवायती जो तस्बीह हमारी चल रही है उससे वो मैंने बता दिया। वो दोनों क्या कहते हैं, तस्बीह करें तो जो कुछ हम करते हैं। जो असल मानी है इसके मादा के एतबार से वो आप समझ लें कि इसके मानी जिद्दोजहद के भी हैं। वो इस आयत से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। वो एक बहुत बड़े काम के लिए जा रहे थे और वही जो पीछे अल्लाह के निज़ाम को मुतशक्किल करने के लिए जो जिद्दोजहद में रुकावट बन रहे हैं उनका मुकाबला भी करना है, मज़ाहमत करनी है। वो इस आयत में पूरी तरह ये चीज़ वाज़ेह हो रही है लुगत के एतबार से। मैं आपको असल में वो बात बताना चाहता हूँ जो मादे से लफ्ज बन रहा है आगे सीन बे ही से। बहरहाल ये तो ज़ाहिर है कि तस्बीह के दानों पर अल्लाह का नाम गिनना कुरानी तालीम का मकसूद नहीं हो सकता। अमली दीन है, इसका ये क्या मानी दानों पर अल्लाह अल्लाह करते रहे। मेरे जहन में बात आती है कि हमने माशरे से मिलावट को ख़त्म करना है। तस्बीह पकड़ लें, मन रशा फलैसा मीना, तस्बीह शुरू कर दें, मिलावट ख़त्म हो जाए। क्या हमारा अंदाज है काम करने का। और ये दीन के हवाले से उसको जैसे ख़त्म करना है आप वैसे होगी कानून नाफिज करके। बहरहाल हम तस्बीह चूँकि हमारी चल रही है, तस्बीहात ही चलती है। कुरानी तालीम का मकसूद नहीं हो सकता। कुरान करीम की रूह से तस्बीह से मफ़हूम क़वानीन खुदाबंदी की अताअत में पूरी जिद्दोजहद और सरगर्मी अमल, यह है असल इसकी बात। अल्लाह ताला की ताअत में पूरी जिद्दोजहद और सरगर्मी अमल, वही तेजी का मादा जो पाया जाता है ना मानी, वही इसमें है। तैरना, तेजी, मजबूती। इस मादा में तेजी, मजबूती, शिद्दत का पहलू होता है। ये स्वाद बे है तस्बीह सब्बह से, इसीलिए कि साउन मुसब्बिहुन के मानी है बहुत मजबूत और सख्त बुना हुआ कंबल। इस एतबार से फसब्बे बेस में रब्बे कल अजीम के मानी होंगे सफात खुदाबंदी को नहायत तेजी, शिद्दत और मजबूती के साथ अपनाना और आम करना। ये है जी फसब्बे के मानी, देख लिए आपके सामने। और देखिए ये जो मैं लफ्ज बोले हैं, सफात खुदाबंदी को नहायत तेजी, शिद्दत और मजबूती के साथ अपनाना और आम करना। सूरत बकरा की 138 नंबर, जिसमें सिफकतुल्लाह के लफ्ज आते हैं, अल्लाह का रंग अपनाओ। तो वो क्या है अल्लाह का रंग अपनाना? वो यही है कि अल्लाह की सफात को अपनाना। विर्द वजीफा नहीं, उनका तस्बीह नहीं शुरू कर देंगे। उन अल्लाह ताला की जो कुरान में सफात है उनको आपने अपनाना है।
हमने अल्लाह की सिफात जो इसमा हैं वो कोई खुद बनाए हुए, कुछ कुरान से में है मौजूद, उनको लेकर हमने तस्बीह शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल गलत है। यही बात है जहां बिल्कुल दूसरी समझ की तरफ शुरू हो गए, असल से हट चुके हैं। मैं ये तस्बीह का मफहूम बयान करने का मेरा मतलब सिर्फ ये है, नहायत तेजी, शिद्दत और मजबूती के साथ अपनाना और आम करना। इंसान के लिए ये रोल मॉडल है अल्लाह ताला के, जो अस्माल हुस्ना है, ये जो सफ़ात है, अल्लाह तो नहीं नजर आता, और उसी से ही उसकी पहचान होती है, सफ़ात से। तो बस भाइयों ये बात है। आगे भी एक है दूसरा आयत कुरान पाक की, उसका जो मरवजा जिसका तर्जमा हम कर रहे हैं वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। ये 30 नंबर सूरत, 30 नंबर से मुराद सूरत रूम, और इसकी 17 नंबर आयत। हाँ, तो सुबहान अल्लाह ही ना तुम सूना व ही ना तुस्बे होना, बस अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ा करो जब कि तुम शाम करो और जब सुबह करो। जान छूट गई, आराम से बैठे हुए तस्बीह करते रहें, कुरान का हुक्म पूरा हो रहा है, अल्लाह का हुक्म पूरा हो रहा है। अब देख लें क्या मतलब बनता है, जो इस लुगत के एतबार से जो तस्बीह का मानी बनता है, इस मादा से मानी बनता है, तुम्हारे लिए उन फराइज की सर अंजाम दही में मसरूफ रहना है जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। सुबह शाम, सुबह शाम तुम्हारे लिए उन फराइज की सर अंजाम दही में मसरूफ रहना है जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुकर्रर किए, जो काम मुकर्रर किए। अल्लाह के अहकामात हैं, उनको माशरे में नाफिज करना है। हम क्या कर रहे हैं? है कोई काम दुनिया में ऐसा, उसको काम कहेंगे जिसका कोई नतीजा ही ना निकले? हम कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, हमारे भाई भी कर रहे हैं, मजम्मतें कर रहे हैं, करते रहें। 70 साल से मजम्मत हो रही है, हिंदू की हो रही है, इसराइल की हो रही है। क्या उसका फायदा हुआ? क्या कोई मकसद निकला? क्या हशर हो गया है फलस्तीनियों का? करते रहें, अच्छा है। ये भी ईरान है, अब वैसे मुसलमानों में उसका किरदार एक मुंह बनाना किरदार है, बिल्कुल। उनके नारा है उनका कौमी, इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। क्या उनके मुर्दाबाद कहने से कोई फर्क पड़ता है इसराइल को? कोई फर्क पड़ा? हमारे फलस्तीनी इसराइल को मुर्दाबाद कहने से या उनकी मजम्मत करने से कोई फर्क पड़ा या पड़ सकता है इसराइल को? नहीं पड़ सकता। या हिंदुओं को उनकी मजम्मत करते रहे आप, कोई फर्क पड़ सकता है? वो किस चीज से हमारे डर रहे हैं? हमारे एटमी हथियारों से डर रहे हैं, हमारे मिसाइलों से डरते हैं। और अगर वो ईरान के क्या उस नारे से डर रहे हैं? नहीं, मुर्दाबाद के नारे से नहीं डर रहे। वो जो उसके पास टेक्नोलॉजी है, मिसाइल हैं, जो अपने वो देता है, हूतियों को देता है, जो उसकी प्रॉक्सीज हैं, जो हिजबुल्लाह को देता है, हमास को देता है, वो है उनके लिए डर का मकाम इसराइल के लिए। ये तुम्हारे नारे नहीं है। ये अपनी दुकान चमकाने के लिए तो ठीक है, चलता है, चलाई रखें, करें, ये भी एक, मगर इसको मकसूदुल ऐन बना लेना, यही है सारा कुछ। कुछ भी नहीं, उसका कोई इतना हिस्सा नहीं। अगर दूसरा कुछ नहीं है, असल चीज नहीं है जिससे दुश्मन डर सकता है, उस तरफ आने नहीं देना, क्योंकि अल्लाह ही सारा कुछ कर रहा है। आप बैठे करते रहें तस्वीर, सुबह शाम अल्लाह की तस्वीर बयान करें। तो मेरे भाइयों, ये है अलमिया, ये है नोहा, ये है सानिया, जो दीन इस्लाम पर गुजरा। बात करें तो बड़ी गालियां पड़ती हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। ये मैंने करके देख लिया, कर भी रहा हूँ, करता रहूंगा, कोई बात नहीं। कोई लोग कहते हैं तो कहते रहें, जो ये तो होता है। दिल हजार बातें सुनना पड़ती हैं, बंदे को हौसला करना चाहिए। वो मैं ज्यादा हौसले वाला नहीं हूँ। बहरहाल यहाँ मैं आपके सामने ये तस्बीह के हवाले से बात जो कहना चाहता था, मुझे नहीं मालूम मैं अपनी बात कितनी आपको समझा सका। ये बहरहाल वही बात, इसके मादे को देखें, अरबी के कानून को देखें। मैं अरबी दान नहीं हूँ, सिर्फ मैं चीज पढ़ के जो समझा हूँ वो पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। शायद मुझे पहले नहीं पता था, शायद जो दूसरों को शायद ना पता हो,
मैं नहीं कहता कोई लाइलम लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे मुफक्कर लोग हैं, लेकिन जिनको नहीं पता मैं चाहता हूं उनको भी पता चल जाए कि असल चीज क्या थी, ये तस्बीह चीज क्या थी और क्या बना दिया गया इसको, ये है। आगे इंशाल्लाह मैं बात करूंगा सलात पर भी, सलात क्या थी, क्या बना दिया। उसमें मैं पहले भी अपने जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मैं अर्ज कर चुका हूँ, खुल के बयान कर चुका हूँ। इसलिए लोग मुझे कह देते हैं तू मुसलमान नहीं है, ये बातें भी सुनना पड़ती हैं फेसबुक पर, ये मुसलमान ही नहीं है। तो मेरे भाइयों ये मैं अर्ज करना चाहता था, आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। ये थी तस्बीह सीन बे है मादे से। आप खुद अपनी लुगत आपके पास है, होनी चाहिए, अगर भी दान नहीं है तो देखने के लिए आप देख लें उसका क्या मानी। हम जो तस्बीह करते हैं वो मानी उसमें कैसे फिट होते हैं नहीं होते। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होते, हमें किसी और तरफ ही लगा दिया गया, असल चीज से हटा दिया गया। आगे इंशाल्लाह सलात पर बात होगी। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।